Okay, students, Assalamu alaikum everyone. So today is lecture number 12. In this lecture, we are going to study increment and decrement operator, their usage in mathematical and relational operations, and then we are going to have an introduction about loops. In loops, we have three types of loop: while loop, do while loop, and for loop. But before starting with the loop, we need to first understand what are different increment and decrement operators we have. Okay, so the first thing is that we have three types of increment and decrement operators. It's really important to understand the concept of these increment and decrement operators, and then while working with loops, we'll come to know the usage of these, the importance of these increment and decrement operators. But first of all, we must understand the concept and how they work. Okay, so first of all, let's read this. So we have this first increment operator is this plus plus, this plus plus, and minus minus. ठीक है, these are read as like plus plus and minus minus. These operators add and subtract one from their operands respectively. यानी कि for example अगर कोई भी variable लिखा हुआ हो, for example a, and उसके बाद plus plus लिखा हुआ हो, so that means a will be, a variable, value of a variable will be incremented by 1. ठीक है, and then if we have written something like a minus minus, then that means the value of a will be decremented by 1. सही है, यानी कि a की जो भी वैल्यू होगी उसमें से -1 हो जाएगा अगर a माइनस माइनस लिखा हुआ है, और अगर a प्लस प्लस लिखा हुआ है तो a की जो भी वैल्यू होगी उसमें से उसका +1 हो जाएगा. सो दैट मीन फॉर एग्जांपल, ये सिमिलर एग्जांपल है आपके पास. फॉर एग्जांपल जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इफ आई राइट नम प्लस प्लस. ठीक है, अगर नम प्लस प्लस लिखा हुआ है तो दैट मीन नम प्लस 1. सही है, नम में नम की जो भी वैल्यू थी उसमें +1 हो गया. ठीक है, और अगर सिमिलरली नम माइनस माइनस लिखा हुआ हो तो नम की जो भी वैल्यू होगी उसमें से -1 हो जाएगा. ठीक है, इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखें एक और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है बिसाइड दिस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज दैट increment with assigning operator or decrement with assigning operator. ठीक है, so this we have increment assigning operator and decrement assigning operator. ठीक है, so ये क्या करते हैं कि ये increment भी करते हैं और assign भी करते हैं वैल्यू. ठीक है, और ये जो अगर डिक्रीमेंट के साथ आ जाएगा तो ये डिक्रीमेंट भी करेंगे और असाइन भी करेंगे. डिक्रीमेंट बाय वन ऑफ, ठीक है. अभी डिक्रीमेंट किसको करते हैं, इंक्रीमेंट किसको करते हैं, अपने ऑपरेंड्स को. ऑपरेंड मीन्स जिन दो वेरिएबल्स के साइड बाय साइड ये लिखे हुए हों. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं. इसकी एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पर देखी थी कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव these two variables, like this first variable is randomly we have num variable whose initial value is 2, and then we have another variable far whose initial value is 7, for example. ठीक है, so if I write num plus assigning far, सो अब क्या होगा हमारे पास, अब ये होगा कि ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि दोनों को यानी कि ऐड करेगा दोनों को, एंड देन असाइन एज वेल. ठीक है, ऐड करेगा और असाइन करेगा. ऐड किसको करेगा, दोनों अपने ऑपरेंड्स को, यानी कि दोनों इसके साइड पे, आइदर साइड पे जो भी इनके वेरिएबल्स होंगे उन दोनों को ऐड कर देगा और असाइन कर देगा वैल्यू. जो भी आंसर आएगा उसको असाइन कर देगा किस वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर होगा. ठीक है, असाइनिंग जो वैल्यू होती है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के पास होती है. सही है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास नम की इनिशियल वैल्यू 2 थी और सर्वर की इनिशियल वैल्यू 7 थी. सो अगर हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा है, सो व्हाट विल happen after this expression is that first of all the value of num and fur will be added, and then the resultant will be assigned to the variable on the left hand side. ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ कमेंट्स में ताकि क्लियर हो. This will do as the values of num and fur will be added
हैंड साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, नम। सही है, यानी कि जो भी वैल्यूज इन दोनों की वैल्यूज होंगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी। ये दो काम हो रहे हैं, ऐड भी करो और असाइन भी करो। ठीक है, दोनों वैल्यूज ऐड होंगी और जो भी रिजल्टेंट होगा वो असाइन हो जाएगा किसको, वेरिएबल एट द लेफ्ट हैंड साइड। सही है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो सो व्हाट विल हैपन इज दैट 2 and 7 will be added, the resultant will be 9, so 9 will be assigned to this num. Fur will remain same, so if we see out this, see out num will be 9, and then next line, and then next line, then fur is again same, will remain same, that is 7. So the resultant will be 9. Output window will display 9 and 7. So let's just see, is it happening or not? Yes, it is happening correctly. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये काम हो रहा है। सिमिलरली इफ यू डोंट हैव अ वेरिएबल, अगर हमारे पास इस साइड पे जो है वो कोई वेरिएबल नहीं है, इट कैन वी कैन ऑल्सो हैव एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो दोनों को ऐड करेगा, यानी कि नम में 2 था और 1, 2 प्लस 1 3, नाउ 3 विल बी असाइंड टू num, so 3 and 7 will be the answer. So let's see. So yes, it is the same, 3 and 7, num में 3 चला गया और फर में 7 चला गया। ठीक है, सो इस तरह से ये काम करता है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पर मतलब कि नम, बोथ रीजन में ये एडिशन ही कर रहा है सिर्फ। सॉरी यस बिल्कुल, ये दो काम कर रहा है, एडिशन एंड देन असाइनिंग। एडिशन करके असाइन कर रहा है, जो यानी कि पहले एडिशन कर रहा है और फिर असाइन कर रहा है। पहले एडिशन का साइन है और फिर असाइन का साइन है, कि पहले एडिशन करो फिर असाइन करो। सही है, तो ये सिंपल ये काम कर रहा है। इट्स नॉट अ वेरी बिग साइंस, कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। सिंपली ये दो काम, दो साइन नजर आ रहे हैं, दो ऑपरेटर्स एक साथ आ रहे हैं, जो ऑपरेटर पहले लिखा है वो वाला काम ही पहले कर देगा। यानी कि पहले सम का साइन लिखा हुआ है तो पहले सम कर देगा दोनों को, और बाद में असाइन करना है तो असाइन कर देगा, सिंपल। सही है, इसको इस तरह से समझना आसान है। सही है, ये समझ में आ गया सबको? ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद वी हैव अनदर ऑपरेटर दैट इज प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दो ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये मैम हमारे ये पास नीचे ऑपरेटर दो हैंडल क्यों लिखे हैं आपने? सिंपली वो फॉर लिखा हुआ तो इस वजह से था, डजंट मैटर, हटा दो इसको, कोई फायदा नहीं है इसका। ये एक्चुअली जब मैंने लूप के साथ इसको रन किया था तो इसलिए मैंने रन किया था कि जब नेक्स्ट टाइम ये रन करे तो विद सम गैप के साथ, ताकि पता चले कि डिफरेंस क्या है, इसलिए डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, दूसरी चीज़ हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं इसको। सो अब ये देखिए एग्जाम्पल देख लें। सो दिस नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखना हो तो उसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि नम प्लस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों को प्लस करो और फिर असाइन कर दो वैल्यू यहाँ पर, तो दीज टू आर सेम। सिमिलरली ये भी हमारे पास नम इज इक्वल्स टू, नम इज असाइन द वैल्यू ऑफ नम माइनस 1 इज इक्वल्स टू, पहले दोनों को माइनस करो एंड देन इज इक्वल्स टू असाइन कर दो। ठीक है, अब सिमिलरली अगर यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स हो, नम प्लस नम वन प्लस नम टू, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमारे पास सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वी हैव। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो है प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस हमारे पास क्या है, इनको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो तरीके से यूज़ हो सकते हैं। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा एक किसी ना किसी वेरिएबल के साथ, इनका एक रूल होता है, ये हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, अब वो वेरिएबल वैल्यू या वैल्यू के पहले भी लगाए जा सकते हैं और बाद में भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि दे आर यूज इन टू डिफरेंट मोड्स। First mode is the postfix mode and the second mode is the prefix mode. Prefix mode means पहले लगाया जाए उस वेरिएबल से, postfix mode means बाद में लगाया जाए उस वेरिएबल के, यानी कि फॉर एग्जांपल if I do this, if I write num plus plus, ठीक है, तो ये यूज हो रहा है एज अ
ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर used as a postfix mode in a postfix mode. ठीक है. Similarly, if I write it like plus plus num, तो ये हमारे पास used is as a prefix mode. पोस्टफिक्स मोड और प्रीफिक्स मोड. सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये पोस्टफिक्स मोड है और ये इसका प्रीफिक्स मोड है, यानी कि और सिमिलरली वी कैन डू इट विद माइनस साइन एज वेल, यानी कि नम माइनस माइनस और माइनस माइनस नम. ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो इसको रीड करना पहले सीख लें कि नम प्लस 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 नम. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको माइनस के साथ लिखूं तो माइनस माइनस नम और नम माइनस माइनस. ठीक है, जरूरी नहीं कि नम के साथ ही यूज हो, वी कैन यूज इट विद एनी वेरिएबल, किसी वैल्यू के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सही है, जरूरी नहीं कि वेरिएबल के साथ ही यूज करें, किसी वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखा. ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो कर लिए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, और ये प्रीफिक्स मोड है क्या, पोस्टफिक्स मोड है क्या, और ये प्लस प्लस करता क्या है. ठीक है, तो हम इसको जरा समझते हैं. सबसे पहले ये जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, दिस प्लस प्लस का काम क्या है. प्लस प्लस का काम ये है टू इंक्रीमेंट बाय नम बाय 1. सही है, अ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, यानी कि जो भी जिस भी वेरिएबल के साथ ये लगा हुआ होगा उसकी वैल्यू को ये इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा 1 से. यानी कि जो भी फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 3 है तो ये 3 + 1 यानी कि 4 कर देगा. ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 5 है तो वो 5 + 1 6 कर देगा. ठीक है, तो ये बस इंक्रीमेंट करता है बाय 1 से. एंड सिमिलरली इफ इट इज माइनस माइनस, देन simply to decrement the value of a variable by 1, या इंक्रीमेंट कर लें या फिर इस तरह से यूज कर लें. सही, सबसे पहले तो ये समझें. अच्छा, now I will explain this prefix and postfix. These two are things different. सबसे पहले मैं explain कर रही हूँ कि we have arranged different questions about them. First question is कि प्लस प्लस करता क्या है, माइनस माइनस करता क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमने इसको रीड करना सीखा. फॉर नंबर 1 थिंग, रीड करना सीखा कि ये रीड कैसे करते हैं. अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ कि किसी वेरिएबल के साथ तो नम प्लस प्लस, और अगर ऐसे लिखा हुआ हो यानी कि प्रीफिक्स मोड में लिखा हुआ हो तो प्लस प्लस नम. सही है. सिमिलरली विद माइनस, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस नम, और सिमिलरली नम माइनस माइनस. सबसे पहले हमने इसको रीड करना सीखा. ठीक है, रीड करने सीखने के बाद सेकंड थिंग इज ये करता क्या है. करता क्या है कि अगर प्लस प्लस होगा तो वो इंक्रीमेंट करेगा 1 से, यानी कि +1 ऐड कर देगा. और अगर माइनस माइनस लिखा हुआ है तो यानी कि -1 कर देगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसको -1 कर देगा. दो चीज़ें सीखी कि यानी कि रीड कैसे करना हमेशा है. बस वन से माइनस और प्लस करता है, या सॉरी इसकी वैल्यू, सॉरी या इसको बाई 5 इंक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस या माइनस. नहीं, ये हमेशा 1 से ही करेगा. अगर 5 से करना होगा तो +5 लिखना पड़ेगा आपको, वो वैसे नहीं करेगा. ये जस्ट 1 से इंक्रीमेंट करता है. मैम जैसे इंक्रीमेंट कि इक्वल्स के दो साइंस होते हैं, एक होता है तो वो साइन टू हो जाता है और दो होते हैं तो इक्वल टू होता है, तो हाँ, ये ऐसे ही है. नहीं, दे बोथ आर इक्वल टू. जो होता है वो दोनों चेंज हो जाते हैं दोनों, मतलब एक असाइनमेंट ऑपरेटर इज टोटली डिफरेंट और एक जो है वो इक्वल टू साइन है, दैट इज टोटली डिफरेंट. ये जो है ये जो डबल प्लस आ जाता है ये 1 का रिप्लेसमेंट होता है. प्लस प्लस मीन्स +1, माइनस माइनस मीन्स -1. ठीक है, ओके मैम, ओके. ओके. सो ये दो चीज़ें सीखी. अब बात ये है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का मतलब क्या है, इन दोनों हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ वी कैन यूज देम
डिफरेंटली, कि मतलब इन दोनों को अलग अलग से क्यों यूज़ किया गया। ये तो समझ में आ गया कि इसका पर्पस क्या है, कि क्या करता है, ये +1 करता है या फिर -1 करता है, लेकिन कैसे करता है और प्रीफिक्स मोड में कैसे करता है, पोस्टफिक्स मोड में ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, पहले इसको रीड कर लेते हैं। प्रीफिक्स, अच्छा सबसे पहले रीड करते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फर्स्ट and then assign the incremented value or decremented value to the variable। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा, सही है, और फिर जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी उसको वो असाइन कर देगा प्रीफिक्स मोड में। यानी कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर असाइन करो, और पोस्टफिक्स मोड में पहले असाइन करो फिर इंक्रीमेंट करो। सही, दोबारा सुने। प्रीफिक्स मीन्स पहले, प्रीफिक्स मोड में है तो यानी कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर असाइन करो। सही, पोस्टफिक्स में पहले असाइन करो फिर इंक्रीमेंट करो। अब इसको मे भी समझ में ना आया, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सो ये हम छोटे से एग्जाम्पल में कॉपी करती हूँ। मैम जी, मैम मतलब कि पहले इज इक्वल टू पोस्ट में पहले इज इक्वल टू लिख के फिर प्लस करें। नहीं वो काम आपका नहीं है, आप सिर्फ प्लस प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, वो खुद से देखेगा, वो मैम फिर वो बस अपना +1 कर देगा। +1 कर देगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन, फिर आई विल वेलकम द क्वेश्चंस देन। पहले जरा सी एग्जाम्पल देख लें। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले इस कोड को देखें। कोड का सबसे पहले कर क्या है, इन द फर्स्ट लाइन व्हाट इज इट इज डूइंग, सी आउट सी आउट नम की वैल्यू क्या है 4, यानी कि जो भी नम की वैल्यू है इसको डिस्प्ले करवा दो, सिंपली 4 डिस्प्ले हो जाएगा, एंडल नेक्स्ट टाइम चला जाएगा। देन सी आउट नम प्लस प्लस। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, ये एज अ किस मोड में यूज हो रहा है, पहले तो ये मुझे याद बताएं, आंसर करें, किस मोड में यूज हो रहा है ये? पोस्ट में। पोस्ट का मतलब क्या है कि पहले बाद में करेगा, पहले असाइन कर दो, बाद में इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट का काम बाद में करना, पहले असाइन कर दो। सही है, यानी कि अब यहाँ पर असाइन तो कुछ भी नहीं हो रहा, किसी को कुछ भी नहीं असाइन हो रहा, तो पहले असाइन नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डिस्प्ले वाला ऑप्शन है। तो यानी कि पहले डिस्प्ले कर दो, बाद में प्लस करना। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, नम की जो भी वैल्यू होगी उसको पहले मैम ये डिस्प्ले दोबारा बताइएगा प्लीज। बताती हूँ। कर क्या रहा है, पोस्ट, ये सबसे पहले ये नम किस मोड में यूज हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस मोड में यूज हो रहा है, पोस्ट में। पोस्ट में, पोस्ट का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट वाला काम बाद में करना। ठीक है, पोस्ट मीन्स बाद में, पोस्ट मतलब इंक्रीमेंट वाला काम बाद में करना, पहले जो दूसरा काम है वो कर लो। दूसरा काम यहाँ पर कौन सा है, या ऑल्दो नॉर्मली असाइनमेंट वाला काम होता है, लेकिन यहाँ पर असाइन वाला काम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सी आउट वाला काम है। तो यानी कि पहले जो है वो ये वाला काम कर लो, बाद में ये काम करना। तो पहले कौन सा काम होगा, सी आउट नम, तो पहले ये सी आउट नम, यानी कि नम में जो भी वैल्यू होगी, पहले इनिशियली वैल्यू क्या थी 4, तो ये उसको डिस्प्ले करवा देगा, और उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, और वो इंक्रीमेंट करके मेमोरी में नम की जो मेमोरी होगी वहाँ पर क्या स्टोर करवा लेगा, वहाँ पर 5 स्टोर कर देगा। यानी कि अब नम में क्या स्टोर हो गया, आफ्टर दिस डिस्प्ले नम में क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। समझ में आया, समझ में आया नहीं? जी मैम अब समझ आ गया। यस समझ में आया ना, यानी कि दोबारा से बताती हूँ।
ये सबसे पहले हम लोग देखना है कि ये जो ओके, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको पहले से पहले रीड करेंगे। अच्छा, नम प्लस 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 मीन्स +1 करना है, नम के अंदर नम की जो भी वैल्यू है उस पर प्लस करना है। अब सवाल ये है कि नम के बाद प्लस प्लस लिखा हुआ है या नम से पहले लिखा हुआ है? नम के बाद लिखा हुआ है। नम के बाद मतलब कि पोस्ट मोड में है, पोस्ट फिक्स मोड में है। पोस्ट फिक्स मोड करने का मतलब क्या है कि पहले दूसरा काम करो फिर बाद में इंक्रीमेंट करना, ठीक है। दूसरा काम कौन सा है? सी आउट करवाना है, तो यानी कि सबसे पहले ये वाला काम कर लेगा, सी आउट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी आउट नहीं है, कुछ और हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर तो साइन कर देगा। जो भी काम होगा वो पहले करेगा, बाद में प्लस करेगा। तो ये सी आउट करवाना है, यानी कि सी आउट प्लस प्लस कर, सी आउट नम कर दो, यानी कि नम की जो भी वैल्यू है इसको डिस्प्ले कर दो, एंड देन नम में जो नम को इंक्रीमेंट कर दो एक नंबर से, यानी कि पहले वो उसे डिस्प्ले करवा